Bismillahirrahmanirrahim. Semester 1 students, today we'll be starting with the second half of our chapter, A Doll's House. Previously we saw that at present a doll's house has been sent, and the children are so excited that they're not only informed their fellow students about the house, but also invited them to come and see. And the conditions were they will not go near it, they will not touch it, and they will come in pairs, 2 at a time, not to make rush. The eldest child is authoritative, and the other two are submissive. Moving on to page number 46. Now they hovered at the edge. अब वो पहुंच गए किनारे पे. You couldn't stop them listening. और एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई, जोश इतना बढ़ गया कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था कि वो सुने बगैर चले. When the little girls turned round and sneered, जब वो छोटी लड़कियां मुड़ी पीछे और देखा लिल की तरफ, as usual, हमेशा की तरह, gave a silly shame-faced smile, तो उन्होंने उन्हें एक जेस्चर दिया, बहुत तंजिया अंदाज में, बड़ा अजीब सा जेस्चर, और उन्हें शर्मिंदा किया. But our else only looked. लेकिन जो उसकी दूसरी बहन है, our else, उसने सिर्फ देखा. And Isabel's voice so very proud. और इजाबेल की आवाज इतने गरूर में भरी हुई थी. Went on telling. वो बताती गई. The carpet made a great sensation. But so did the beds. जो कारपेट है उस डॉल्स हाउस में, वो बड़ा एक जज्बाती सा मंजर देता है. But so did the beds. और इसी तरह जो फर्नीचर है, with real bed clothes, जिसके ऊपर असली चादरें बिछी हुई, and the stove with an open door, और जो वहां चूल्हा रखा हुआ है, उसमें ओवन का दरवाजा है. When she finished, Kezia broke it. जब वो बताना बंद हो गई बड़ी इजाबेल, तो कीजिया बीच में आ गई और बोली, You have forgotten the lamp, Isabel. इजाबेल, तुमने लैंप के बारे में बताना याद ही नहीं रहा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वो लैंप पसंद आया था. Oh yes, said Isabel. हाँ, इजाबेल ने कहा. And there's a teeny little lamp. कि उसके अंदर एक बहुत छोटा सा लैंप है, all made of yellow glass, जो येलो कलर के, पीले रंग के शीशे का बना हुआ है, with a white globe that stands on the dining room table. और वहां एक सफेद रंग का ग्लोब है उसके ऊपर, जो डाइनिंग रूम का जो टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है. You couldn't tell it from a real one. और तुम फर्क नहीं कर सकते और ना ही ये बता सकते हो कि ये असली है या नहीं. The lamp's best of all, cried Kezia. कीजिया ने चीख कर कहा कि सबसे उम्दा चीज लैंप है. She thought Isabel wasn't making half enough of the little lamp. क्योंकि उसने सोचा कि इजाबेल लैंप को इतनी अहमियत नहीं दे रहे. But nobody paid any attention. लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. Isabel was choosing the two who were to come back with them that afternoon and see it. Isabel मसरूफ थी चुनने में उन दो सहेलियों को, उन दो लड़कियों को जो इस शाम, इस दोपहर के बाद उनके साथ जाएंगे और सबसे पहले क्या देखेंगे? A doll's house.
She chose Amy Cole and Lena Logan, और उसने चुना एमी कोल और लेना लोगान को. But when the others knew they were all to have a chance, लेकिन जब दूसरों को पता चला कि सबको मौका मिलेगा, they couldn't be nice enough to Isabel. तो वो अच्छा बर्ताव नहीं किया उन्होंने इजाबेल के साथ. One by one they put their arms around Isabel's waist and walked her off. एक एक करके उन्होंने इजाबेल को बाय बाय किया, उसे गले मिले और चले गए. They had something to whisper to her. उन सबके पास सरगोशी करने को, खामोशी से उसके कान में कुछ कहने को था. A secret, एक राज. Isabel's my friend. Isabel मेरी दोस्त है. Only the little Calvis moved away forgotten. There was nothing more for them to hear. सिर्फ जो कैलवीज थे, दो बहनें, वो अननोटिस्ड थीं. उनसे किसी ने कोई बात नहीं की. उनके पास कहने को भी कुछ नहीं था. चुप करके खामोशी से वहां से चले गए, क्योंकि अब कहानी खत्म हो चुकी. Days passed, दिन गुजरते गए. And as more children saw the doll's house, और जैसे ज्यादा बच्चों ने वो तोहफा देख लिया डॉल्स हाउस, the fame of it spread. तो उसकी शोहरत फैल गई, वो बाहर बातें करने लगे. It became the one subject, the rage. और वो सब के लिए एक टॉपिक बन गया जिसपे हर शख्स बात कर. The one question was, एक सवाल था, Have you seen Bernal's doll's house? क्या तुमने बर्नल्स के घर में डॉल्स हाउस देखा है? Oh, ain't it lovely? क्या वो बहुत खूबसूरत नहीं है? Haven't you seen it? Oh, ऐसे क्या तुमने नहीं देखा? मैं कह रही हूँ. Even the dinner hour was given up to talking about it. यहाँ तक कि रात के खाने के वक्त भी उसी डॉल्स हाउस की बात हो रही. The little girl sat under the pines, eating their thick mutton sandwiches. और वो लड़कियां पाइन ट्री के नीचे बैठ गई और अपना लंच करने लगी. While always as near as they could get, और एक दूसरे के साथ इतना करीब होकर जुड़ के बैठ गई जितना वो बैठ सकती थी. Sat the Calvis, और साइड पे कैलविस बैठी थी. Or else holding on to live, listening to, और वो भी उनकी बातें सुन रही. While they chewed their jam sandwiches, जब वो अपना सैंडविच खा रही हैं, out of a newspaper soaked with large red blobs, न्यूज़पेपर में लिपटे हुए सैंडविच निकालकर, mother said Kezia, माँ ने कहा Kezia, can't I ask the Calvis just once? क्या मैं कैलविस को सिर्फ एक दफा नहीं बुला सकती? Certainly not, Kezia. Kezia ने कहा नहीं. But why not? लेकिन क्यों नहीं? माँ ने पूछा. Run away, Kezia. You know quite well. Why not? भाग जाओ यहाँ से Kezia. तुम्हें मालूम है कि क्यों नहीं. At last, everybody had seen it except them. आखिर में सबने देख लिया सिवाय कैलविस के. On that day, the subject rather flagged. और उस दिन ये जो बहस का एक टॉपिक था उड़ गया. It was the dinner hour. रात के खाने का वक्त था. The children stood together under the pine trees. और बच्चे मौजूद थे उस पाइन ट्री के नीचे. And suddenly, अचानक, as they looked at the Calvis, जब उन्होंने देखा कैलविस की तरफ, eating out of their paper, अपने अखबार से लंच निकालते हुए और उसे खाते हुए, always by themselves, हमेशा खुद ही खाते थे वो, always listening, और हमेशा बातें सुन रहे होते थे. They wanted to be horrid to them. Amy Cole started the whisper. वो उन्हें खौफजदा करना चाहते थे, तो एमी कोल ने सरगोशी शुरू की. Lil Calvi is going to be a servant when she grows up. Lil Calvi जो है वो एक मुलाजमा बनेगी जब वो बड़ी हो जाएगी. Oh, how awful. ये कितना बुरा है. Said Isabel Bernal.
इजाबेल बर्नर ने कहा। एंड शी मेड आईज एट एमी, और उसने आंखें लगाई हुई थी एमी। एमी swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she had seen her mother to do on those occasions. एमी ने ये बात हजम की और इजाबेल को सर हिलाकर कहा, जैसे क्योंकि उसने देखा हुआ था कैल्विस की मां को कई मौकों पर ऐसा करते हुए। It's true, it's true, it's true, she said. ये सच है, ये सच है, ये सच है, उसने कहा। Then Lena Logan's little eyes snapped. अब इस गुफ्तगू में लेना लोगान भी हिस्सा लेने को आ गई। Shall I ask her? She whispered. क्या मैं उसे पूछूं? उसने खामोशी से कहा। Bet you don't, said Jessie May. ना ऐसा मत करना, जैसी ने कहा। Pooh, I am not frightened. मैं इनसे डरती नहीं हूँ, said Lena. Suddenly she gave a little squeal and danced in front of the other girls. और अचानक वो उठी और डांस करने लगी दूसरी लड़कियों के सामने। Watch me now, said Lena. देखो मुझे, अब मुझे देखो, लेना ने कहा। And sliding, gliding, dragging one foot, giggling behind her hand, Lena went over to the Calvis. लहराती हुई अपना हाथ पीछे करती हुई ऐसे ऐसे डांस करते हुए कैल्विस के पास चली। लिल looked up from her dinner. लिल ने ऊपर की तरफ देखा। She wrapped the rest quickly away. और बाकी का खाना उसने पैक करके साइड पे कर दिया। Averell stopped chewing. Averell ने भी खाना बंद कर दिया क्योंकि लिल रुक गई थी। What was coming now? अब क्या होने वाला था? Is it true you are going to be a servant when you grow up, Lil Calvi? shrilled Lena. उसने चीख भरी आवाज से कहा कि क्या ये सच है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मुलाजमा बनोगी, Lil Calvi? Dead silence. इस बात के बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। But instead of answering, जवाब देने की बजाय Lil only gave a silly, shamefaced smile. Lil ने सिर्फ उसको एक शर्मिंदगी भरा जेस्चर दिया, बहुत अजीब किस्म का। She did not seem to mind the question at all. और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे ये सवाल बहुत बुरा लगा। What a salvo for Lena! The girls began to titter. कितनी अजीब बात है, कितना अजीब तासुर दिया है लेना को। लड़कियों ने आपस में कहना शुरू किया। लेना couldn't stand that. लेना को ऐसा जवाब पसंद नहीं। She put her hands on her hips. She shot forward. Yeah, your father is in prison, she hissed spitefully. और उसने गुस्से में आगे से क्या कहा? तुम्हारा बाप जेल में है। थूकने के अंदाज में बात। This was such a marvelous thing to have said that the little girls rushed away in a body, deeply, deeply excited, wild with joy. और ये बात इतनी उम्दा थी कि वो कैल्विस सिस्टर्स जो थी वो एक लम्हे में जोशीले अंदाज में खुशी के साथ वहां से भाग गई। Someone found a long rope and they began skipping. कुछ लड़कियों ने एक रस्सी पकड़ी और स्किपिंग शुरू कर दी। And never did they skip so high, run in and out so fast, or do such daring things as on that morning. और इतनी तेजी और फुर्ती के साथ स्किपिंग होने लगी कि ऐसा पहले कभी ना हुआ। In the afternoon, दोपहर के वक्त, Pat called for the Burnell children. Pat ने बुलाया बर्नल के बच्चों को with the buggy and they drove home. बग्गी मंगाई और वो घर चली गई। There were visitors, कोई मिलने आया था।
Isabel and Lottie, who liked visitors, went upstairs. Isabel और Lottie, जिनको मेहमान बहुत पसंद थे, ऊपर चले गए to change their pinafores, अपना यूनिफॉर्म कपड़े उतार के बदल लें. But Kezia thieved out at the back. लेकिन कीजिया चोरी से पीछे चली गई. Nobody was about, कोई भी मौजूद नहीं था. She began to swing on the big white gates of the courtyard. और वो लहराने लगी बड़े से गेट पे जो पीछे लॉन में मौजूद था. Presently looking along the road, रोड के ऊपर नजरें टिकाकर she saw two little dots. उसने देखा दो छोटे डॉट्स को. They grew bigger. वो बड़े हो गए थे. They were coming towards her. वो उसकी तरफ आ रहे थे. Now she could see that one was in front and one close behind. और अब उसने देखा कि एक आगे था और एक उससे काफी पीछे था और एक ही लाइन में चल रहे थे. वो इतने छोटे थे क्योंकि ये काफी ऊंचाई पे. Now she could see that they were the Calvis. और अब उसे पता चला जब वो करीब आए कि वो Calvi sisters थी. Kezia stopped swinging. कीजिया ने झूला लेना बंद किया. She slipped off the gate as if she was going to run away. वो गेट से नीचे उतरी ऐसे कि जैसे वो भाग जाएगी वहां से. Then she hesitated. फिर वो हिचकिचाई. The Calvis came nearer. Calvi sisters और करीब आई. And beside them walked their shadows. और उनके साथ उनके साए थे. Very long, बहुत लंबे. इसका मतलब है कि सूरज गरूब होने की तरफ है. क्योंकि जब सन आपके जैसे जैसे ऊपर आता है सूरज, आपका साया छोटा होता चला जाता है. फिर जब वो गरूब होने की तरफ जाए और आप उसकी तरफ देखो तो आपका साया पीछे बनेगा. और जब वो तुलू हो रहा हो और आप उसकी तरफ देखो तो साया कहीं और बनेगा. Stretching right across the road with their heads in the buttercups, Kezia clambered back on the gate. She had made up her mind. She swung out. कीजिया दोबारा चढ़ी गेट पे और बाहर चली गई. Hello, she said to the passing Calvis. उसने Calvis से बात की जो वहां से गुजर रही थी. They were so astounded. वो इतनी हैरान हो गई that they stopped. कि वो रुक गई वहीं पर, सीज हो गई. Lil gave her silly smile. और लिल ने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी. Our else stared. और जो छोटी बहन है उसकी लिल की Our else वो घूरती रही. You can come and see our doll's house if you want to. तुम आके हमारा डॉल्स हाउस देख सकती हो अगर तुम चाहती हो. Said Kezia. Kezia ने कहा. And she dragged one toe on the ground. और उसने घसीटा अपना एक टो ग्राउंड पे. But at that, Lil turned red. और जब उसने ड्रैग किया अपना टो तो लिल लाल हो गई. And shook her head quickly. और इनकार कर दी. Why not? asked Kezia. कीजिया ने पूछा क्यों नहीं. Lil gasped. Then she said. उसने हौका भरा सांस लिया और कहा Your ma told our ma you wasn't to speak to us. तुम्हारी अम्मी ने हमारी अम्मी से कहा है कि तुम्हें हमसे बात करने की इजाजत नहीं है. Oh well, said Kezia. She did not know what to reply. Oh, Kezia ने कहा. अब उसे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि जवाब क्या दूं. It doesn't matter. इस बात का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं. You come and see our doll's house all the same. Come on, nobody is looking. तुम आओ हमारा डॉल्स हाउस देखो जैसे सबने देखा है. कोई यहां मौजूद नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा. But Lil shook her head still harder. Lil अभी भी हेजिटेट कर रही है. अभी भी उसने नफी में सर हिलाया. Don't you want to? asked Kezia. क्या तुम नहीं देखना चाहती? Kezia ने पूछा. Suddenly there was a twitch, a tug at Lil's skirt.
अब लिल की जो स्कर्ट है वो हिली, झटका मिला उसको। आरएल्स ने उसको बुलाया। She turned round, वो पीछे मुड़ी। आरएल्स was looking at her, आरएल्स उसकी तरफ देख रही with big imploring eyes, आंखें फाड़ फाड़ कर। She was frowning, she wanted to go, और उसका जेस्चर ये बता रहा था कि वो जाकर देखना चाहती थी उस घर को। She started forward, वो आगे बढ़ी। कीजिया led the way, कीजिया ने उन्हें रास्ता दिखाया। Like two little stray cats, they followed across the courtyard to where the doll's house stood. दो छोटी बिल्लियों की तरह वो कीजिया के पीछे पीछे चली उस कोर्टयार्ड में जहां वो घर रखा हुआ था। There it is, said कीजिया, ये देखो, ये यहां मौजूद है, कीजिया ने कहा। There was a pause, खामोशी हो गई। Lil breathed loudly, लिल ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी। Almost nodded, हाँफते हुए। Arels was still as stone, और आयल्स जो थी छोटी बहन उसकी, वो अभी भी शॉक्ड थी। I'll open it for you, मैं खोलती हूं तुम्हारे लिए, said कीजिया काइंडली, बहुत मेहरबानी के अंदाज में कीजिया ने कहा। She undid the hook and they looked inside, उसने दरवाजा खोला और उन्होंने अंदर देखा। There's the drawing room and the dining room and that's the कीजिया। Oh, what a start they gave, कीजिया। It was Aunt Burley's voice, आवाज आई कोई, Aunt Burley की। They turned round, वो मुड़े। At the back door stood Aunt Burley, Aunt Burley दरवाजे पे खड़ी थी, staring as if she couldn't believe what she saw, और ऐसे घूर के देख रही थी कि जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा। How dare you ask the little Calvis into the courtyard? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम इन Calvis को अंदर लेके आए? Said her cold, furious voice, गुस्से के अंदाज में उसने कहा। You know as well as I do, you are not allowed to talk to them. तुम अच्छी तरह जानती हो जिस तरह मैं जानती हूँ कि तुम्हें इजाजत नहीं है इनसे बात करने की। Run away, children, run away at once. भाग जाओ यहाँ से बच्चों। And don't come back again, और कभी वापस मत आना, said Aunt Burley, Aunt Beryl ने कहा। And she stepped into the yard and shooed them out as if they were chickens, और उन्होंने ठुड्डे मारकर बाहर निकाला जैसे कि वो मुर्गियां। Off you go immediately, दफा हो जाओ, she called, cold and proud, गरूर और गुस्से से। They did not need telling twice, उन्हें दूसरी दफा बताने की जरूरत नहीं थी। Burning with shame, शर्मिंदगा होकर, shrinking together, सुकड़े हुए। Lil huddling along like her mother, Lil उसको घसीटते हुए ऐसे जैसे वो उसकी माँ हो। Arels dazed, और Arels डेज करती रही, देखती रही आंखें फाड़ फाड़ कर। Somehow they crossed the big courtyard, और किसी तरीके से वो कामयाब हो गए वहां से निकलने में। And squeezed through the white gate, और बहुत तंगी के साथ सुकड़ते हुए दरवाजे से, गेट से बाहर चले गए। Wicked, disobedient little girl, नाफरमान छोटी लड़की, said Aunt Beryl bitterly to कीजिया, गुस्से से उसने कीजिया को कहा Aunt Beryl ने। And she slammed the doll's house too, और उसने उस डॉल्स हाउस को भी धक्का मार के नीचे गिरा। The afternoon had been awful, दोपहर बहुत अजीब रही। A letter had come from Willy Brent, एक खत आया था विली ब्रेंट की तरफ से। A terrifying, खौफजदा कर देने वाला, threatening letter, धमकी आमेज खत, saying if you did not meet him that evening in Pullman's bush, he would come to the front door and ask the reason why, जिसमें यह लिखा था कि अगर वो पलमांस बुश ना आई उसे मिलने तो वो खुद आ जाएगा वजह जानने। But now that she had frightened those little rats of Calvis and given Kezia a good scolding, her heart felt lighter. अब चूंकि उसने अपना गुस्सा निकाल लिया था कीजिया पर और कैल्विस पर, तो अब उसका जो दिल था उसका बोझ हल्का हो गया।
That gaspy player was gone, pressure was gone. और वो जो खौफ ज़दा कर देने वाला उस पे दबाव था वो अब जा चुका था. She went back to the house humming. और वो वापस भिनभिनाती हुई घर में चली गई. When the Calbys were well out of sight of Bernals, they sat down to rest on a big red drain pipe by the side of them. जब कैल्वीज काफी दूर चली गई थी बर्नल्स हाउस से, तो वो एक ड्रेन पाइप पर बैठ गई रोड के साथ, लाल रंग का जो लगा हुआ था आराम करने के लिए. लिव्स चीक्स वर स्टिल बर्निंग. बड़ी बहन के गाल अभी भी लाल थे. She took off the hat with the quill and held it on her knee. उसने अपनी कैप उतारी जो काफी गर्म थी और अपने घुटने पे रख दी. Dreamily they looked over the hay paddocks. और वो सोचने लगे, गुमान करने लगे और देखते रहे hay paddocks पे past the creek जो उनसे थोड़ी सी दूर था, to the group of wattles where Logan's cow stood waiting to be milked. जहां पे लोगान्स की गायें थी जिनका वो दूध धोने वाले थे. What were their thoughts? वो क्या सोच रही थी? उनके जहन में क्या था? Presently, Averell nudged up close to her sister. उस वक्त छोटी बहन करीब लाग के बैठी हुई थी अपनी बहन के. But now she had forgotten the cross lady. लेकिन अब वो खौफ उसके ज़हन से निकल गया था. वो स्कोल्डिंग, वो डांट, वो गुस्सा जो आंट बैरल ने उनको दिया था वो उसे भूल चुकी थी. She put out a finger and stroked her sister's quill. उसने अपनी उंगली मारी अपनी बहन की क्विल पे. She smiled her rare smile और उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए जेस्चर दिया. I seen the little lamb. मैंने वो छोटा लैंप देख लिया. She said softly. उसने धीमे से कहा. Then both were silent once more. और उसके बाद वो दोनों दोबारा खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए. Now, next you see Catherine Mansfield, New Zealand-born British master of short story who evolved a distinctive style with overtones of poetry. Her delicate stories focused upon psychological distinctive style with overtones of poetry. Her delicate stories focus upon psychological conflicts, love and of bleakness of narration and a subtlety of observation. She had much influence on the development of the short story as a form of literature. One of the most highly regarded short story writers of the 20th century, she played her part in shaping modernism by experimenting with style, subject matter and theme in the body of work that redefined the genre. As well as short stories, she also wrote letters, reviews and journals. In the Dollhouse, the main theme is the injustice and cruelty associated with class distinctions. पहली चीज है क्लास डिस्टिंक्शन या you can say differentiation. Second thing that it leads to is injustice and cruelty. Mansfield also explores how the high class takes deliberate pleasure in being cruel to lower classes and how innocently born children who are brought in this atmosphere can easily become influenced. Mansfield uses the symbols, particularly the dollhouse and the lamp, to reveal these themes. The dollhouse is the revolving symbol which is the base of story and its happenings. The theme of class, prejudice, correction, hope, appearance and equality are all centered in it. The beauty, appearance, color, shape and size of the dollhouse, the external aspects of the house represent the status, assets,
economical conditions and the position of human beings in the society. The interior of the house refers to the true human nature. The extraordinary furniture and frames show the dark side of the human nature and its greed for luxury. The smell of the dollhouse represents the cruelty of society. The simple lamp represents the humble side of human nature and the light that dwells within us. The lamp is also used to symbolize equality as it spreads the light equally in all directions in real life. The lamp symbolizes hope and connection as well. The gate in the story may also be symbolic. When the gate is swung open, it suggests the removal or obstruction or social prejudice. अब ये मेन थीम है इसका. The lamp is the symbol for kindness, that it glows and spreads knowledge, or you can say information, which might help diminishing the dark side of human beings. अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये बखूबी जान लेंगे कि मुआशरे में देयर इज क्लास डिफरेंशिएशन, तबकात में बटा हुआ है, इनजस्टिस है, क्रूएल्टी है. डॉल्स हाउस देखने के लिए सबको इजाजत थी सिवाय उन दो लोअर क्लास की लड़कियों के. इनोसेंट बच्चों का क्या कसूर, उनको क्यों भुगतना पड़ता है, उनके जहनों में क्यों क्लास डिफरेंशिएशन डाली जा रही है. कीजिया इनोसेंस का सिंबल है. इजाबेल या आंट बैरल, दे आर इनजस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, और वो इस चीज में राहत महसूस करते हैं कि जो किसी को कमतर दिखा के खुद को अबतर महसूस करते हैं, इस चीज में उनको फख्र है. वो डॉल्स हाउस, उसके अंदर मौजूद फर्नीचर, तमाम चीजें, उसका फ्रेश पेंट, वो सब लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को उनके हकूक नहीं देते, वो उन पे जुल्म करते हैं, वो उनके साथ नाइंसाफी करते हैं. और यही हो रहा है कैल्विन सिस्टर्स के साथ. और राइटर ये जो एस्पेक्ट है सोसाइटी का उसको हाईलाइट करता है, और वो ये डिमांड कर रहा है कि खुदारा इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, क्रूएल्टी, इनसे लोगों को पाक कर. सब बराबर है, सबको हक है कि उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिले. बार बार लैंप पे फोकस किया गया स्टोरी में. लैंप रोशनी, जो इंसानों के अंदर का अंधेरा है उसको खत्म करने की कोशिश. रोशनी काइंडनेस डिमांड करती है, क्रूएल्टी को छोड़ दो, काइंड हो जाओ, लोगों के साथ मेहरबानी का रवैया रखो, रहम का रवैया रखो. लैंप सिंबल है जो रोशनी देगा, जो नॉलेज देगा, जो मालूमात देगा. उस रोशनी, उस मालूमात के जरिए, उस नॉलेज के जरिए जो हमारे अंदर की अंधेरी साइड है, डार्क साइड है, उसको खत्म करेगा. लैंप क्यों इंपॉर्टेंट है? लैंप इसलिए इंपॉर्टेंट है. एंड पे आवरेल्स ने भी यही कहा कि मैंने लैंप देख लिया. जब कीजिया ने उन्हें मौका दिया कि आओ तुम भी डॉल्स हाउस देखो, यहां कोई नहीं है, और उसने दावत दी तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें बराबरी का एहसास हुआ. जो पहली महरूमी थी वो उनके जहन से जाती रही. एक काइंडनेस का जो एक्शन था
उसने वो तमाम इनजस्टिस, तमाम क्रूअल्टी को भुला दिया। द लास्ट लाइन जिसमें वो कहता है कि वो भूल चुकी थी अब उस गुस्से को, उस झाड़ को, उस बात को जो आंट बैरल की थी, जिस अंदाज से उसने धक्के दे के उनको निकाला। और अब जो स्माइल कभी किसी ने नहीं देखी थी, आज पहली मर्तबा डॉल्स हाउस के अंदर उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताया कि एट द एंड इस मौके ने डॉल्स हाउस को देखने के उनके मुस्कुराहट को वापस लाया। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुरा कर जेस्चर किया। तो ये पहली मुस्कुराहट थी जो इस पूरे लेसन के अंदर हमने देखी। इससे पहले यही बताया गया है उनके कैरेक्टर के बारे में कि किसी ने आज तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल विद द डॉल्स हाउस। उसकी समरी, उसका मेन थीम, और अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, कोशिश करो देखने की अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे में, तो आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी। यू हैव टू चेंज। आपने तब्दीली लानी है। ये चॉइस आपकी है कि वेदर टू बिकम बर्नर्स and not allow calories or change the scenario. Go through the chapter. If you have any question, I am there. Thank you.